Hello friends, welcome to my YouTube channel. So continuing logarithm, this is the lecture number 4 and here we discuss about some important graphs. So guys, let's start. First graph, y equal to log x base a. We have discussed already about this graph. This graph is, this is x-axis, x, this is the negative side of x, y and negative side of y. So y dash. Now log x base a, where a greater than 0, we have already discussed this graph. This graph will be like this. The curve is, when the curve is, the x value is towards 0, then graph is towards minus infinity. And when the value of x is towards infinity, the graph is towards infinity, plus infinity. So now this value is, this point is 1 comma 0. Okay, this point is 1 comma 0 and the graph is log x base a, where a greater than 1. For example, a equal to 2. For example, f of x equal to log x base 2. How to draw this graph? Just draw a table x, y, and you take the values 2 to the power 0, that is 1, 2 to the power 1, that is 2, 2 to the power minus 1, that is 1 by 2, 2 to the power 3, 2 to the power 3, that is 8. If we take 3, then 8. So 2 to the power any value, that is y, and the answer we got, that is x. So 2 to the power y value is 0. If we take 0, 2 to the power 0, x will be 1. So if we take 0, y value 0, then x is 1. So this is a table and draw this graph. 1 0, here 1 0, 2 1, 2 and 1 here, and 1 by 2 comma minus 1, 1 by 2 here, minus 1 in the lower side of the x-axis. Now 8 3, if 8 is here, then 3 will be somehow here. So now the graph is like this, log x base 2, log x base 3 graph also same, log x base 4, log x base 5, log x base 6, any base greater than 1, the graph is like this. So graph 1 completed. So now should come to graph number 2. In graph number 2, the same y equal to log x base a graph, and where a value is 0 to 1, so graph is looks like this. Okay, we have discussed it earlier videos. 1 0, and this is x-axis, and this is x negative side, this is y. थोड़ा सीधा होना चाहिए. No. Okay. So 1 0 x y, and here y dash, and this graph is called log x base a, where 0 less than a less than 1. So for x greater than 0, it is always true. Okay, now student, for example, f of x equal to log 1 by 2x. Okay, 1 by 2 or log 0.5x, meaning same thing, log x 0.5, base 0.5. So for this, we draw the table and draw the graph, whether it looks like this or not. So 1 by 2 to the power 0, 1 by 2 to the power. Power means, that is why 0 means 1 in 1 means x. So half to the power 0 is 1. Half to the power 0, that is 1. And half to the power 1, that is 0.5. So power 1, 0.5. And if half to the power minus 1, that is 2. Power minus 1, that is 2.
and half to the power 2, that is 1/4, means 0.25. If power minus 2, that is 4 minus 2, that is 4. So draw the graph. Sorry. Draw the graph for this. 1 0 point is here. Some other color pen we choose. This is 1 0, 1 comma 0, 0.5 comma 1. Here 0.5. So 1 is here. And 2 minus 1. 2 is here. Minus 1 is lower side of the x-axis. And 2 minus 1 already done. 0.25 to 0.25 means this is 0.5. This is 0.25. For 0.25 it is 2. And 4 minus 2, suppose 4 is here, so minus 2 is here. So graph looks like this. If smoothly we draw, okay, so log x base 0.5, log x base 0.2, log x base 0.3, log x base 0.4, log x base any value in between 0 to 1, the graph will be like this. So graph 2 also completed. Now should come to graph number 3, y equal to log x base a. Just to have drawn this graph also. Sorry, y equal to log x base a. Y equal to log x base a. First we draw y-axis, y dash, and second x-axis, x dash, and a value greater than 1. We know if a value greater than 1, the graph will be like this. Okay. The graph will be like this. So, but here question is given x, not question, it is given that x greater than 1. This value is 1 comma 0. We know this is the graph number 1 we have discussed earlier. And we want the graph right side of x, right side of when x equal to 1. So 1 का right side में ग्राफ ड्रॉ करेंगे, तो नीचे साइड को तो मिटा देंगे, इस साइड इस अलग ग्राफ नहीं चाहिए, बस ग्राफ इज डन. थोड़ा ग्राफ और अच्छा से दिखना चाहिए. Graph will be looks like this. So completed. This graph is log x base a, log x base a, where a greater than 1 and x also greater than 1. So graph 3 completed. Log x base 2 graph when x greater than 1. So similar. Graph number 4. Sorry. In graph number 4, x is less than 1 and a value is 0 to 1. We know if a value is 0 to 1, the graph is like this. This is a graph. धीरे धीरे इंक्रीज होके 1 में कट करेगा, फिर when x tends to 0, y tends to minus infinity. When x tends to 0, y tends to प्लस इंफिनिटी. y जो है देखो 0 की तरफ जब जाएगा ग्राफ प्लस इंफिनिटी तरफ जा रहा है. जब x इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है तो y वैल्यू विल बी प्लस इंफिनिटी, नॉट माइनस इंफिनिटी. y विल बी माइनस इंफिनिटी, नीचे तरफ जा रहा है. चलो ठीक है, हमें इतना ग्राफ तो ड्रॉ नहीं करना, बिकॉज x लेस देन 1 के बारे में सोचेंगे. अब ये जो वैल्यू है दिस इज 1,0, यू नो, तो ग्राफ को 1 से लेफ्ट की तरफ सोचेंगे और बाकी सबको मिटा देंगे. ड्रॉ द ग्राफ दिस. सो दिस इज डन.
this graph completed. This is x, this is y, x dash, and this portion is y dash, and this is the origin. So now graph is this completed. Now come to graph number 5. In fifth graph, you can see y equal to log x base say a greater than 1. A greater than 1 means the graph is like this. And 0, x value is 0 to 1. So x का वैल्यू जो है वो 0 से 1 है, मतलब 1,0 का राइट साइड में ग्राफ को नहीं ड्रॉ करना, नहीं ड्रॉ करना तो सिमटा देंगे बस. दिस इज द ओरिजिन, दिस इज y and this is x, and this side is x dash and the lower side is y dash. You can see the graph is okay. You can see the graph is somehow like this. धीरे-धीरे increase. Okay, this point is 1,0. Okay, ये ग्राफ को थोड़ा और अच्छा से कर दिया ड्रॉ, दोनों सेम ही है. So this graph done. Graph number 6. Sorry. Graph number 6. Same graph, log x base a. Log x base a. This is y, this is x, and this side is x dash, and lower side is y dash. And log x base a graph when 0 less than a less than 1 means graph is, अब ऊपर तरफ से आएगा, ये 1 में इंटरसेक्ट करके ये नीचे तरफ इस तरह से आएगा. So this value is 1,0. और हमें तो 1 का आगे आगे जाना है, राइट साइड में जाना है, तो ऊपर वाला मिटा देंगे. इस 0 से 1 के बीच में ग्राफ का कोई जरूरत नहीं है, मतलब 0 से 1 के बीच में जो x का वैल्यू है, 0 से 1 के बीच में जो x का वैल्यू है वो जरूरत नहीं है हमें. तो हमें जरूरत क्या है, हमें x का वैल्यू जब 1 से ज्यादा हो राइट साइड में चाहिए. दिस इज ओरिजिन and this graph is log x base a but x greater than 1. So this is the graph number 6. Now come to graph number 7. In graph number 7 you can see y equal to log mod x base a. अब x के जगह पे mod डाल दिया, तो x के जगह पे अगर mod डालते हैं तो क्या रूल कहता है, ट्रांसमिशन. व्हाट इज द रूल फॉर ट्रांसमिशन? y equal to f of x. अगर x के जगह पे हम लोग mod x डालेंगे कोई भी फंक्शन में, कोई भी ग्राफ, कोई फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करने के लिए, तो ग्राफ किस तरह से ड्रॉ होगा, ग्राफ में अगर मॉडल्स डालेंगे तो y एक्सिस के लेफ्ट साइड में जो ग्राफ है उसे मिटा देंगे और राइट हैंड साइड में जो ग्राफ है उसे ड्रॉ कर देंगे. फिर से अगर x के जगह पे मॉडल्स किसी ग्राफ में डाला गया तो हम लोग क्या करेंगे, जो भी ग्राफ y एक्सिस के लेफ्ट में है उसे मिटा देंगे और y एक्सिस का राइट में जैसा ग्राफ है वैसे ही डिटो ग्राफ लेफ्ट में ड्रॉ कर देंगे. फॉर एग्जांपल y इक्वल टू e टू द पावर mod x का ग्राफ ड्रॉ करना है, तो y इक्वल टू e टू द x का ग्राफ तो पता ही है, ऐसा होता है y इक्वल टू e टू द पावर x का ग्राफ, एक्सपोनेंशियल ग्राफ. तो हम लोग क्या करेंगे, तो ये राइट साइड वाला ग्राफ को रखेंगे, लेफ्ट साइड वाला ग्राफ को मिटा देंगे और जैसा राइट साइड में दिख रहा है डिटो वही वाला लेफ्ट साइड में ड्रॉ कर देंगे. तो दिस इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू द mod x. उसी तरह से सॉरी log x का ग्राफ, log mod x का ग्राफ जब a का वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगा तो किस तरह होता है, पहले वो ड्रॉ करेंगे बेसिक ग्राफ, और बेसिक ग्राफ को ही हम लोग कर देंगे ट्रांसफॉर्मेशन बाय चेंजिंग x वैल्यू mod x. देखो दिस वन x, सिमिलरली दिस इज x dash, y dash. तो ग्राफ हम लोग का कैसे होता है a ग्रेटर देन 1 के लिए, और ग्राफ कैसे होता है फॉर x वैल्यू, a वैल्यू 0 to 1. a वैल्यू 0 से 1 के बीच में ग्राफ कैसे बनता है, इस तरह से बढ़ते हुए जाएगा, ग्राफ इस तरह से रहेगा, और इन दिस केस द ग्राफ इज लाइक दिस. तो हमें तो चाहिए log mod x बेस से, मतलब x के जगह जो mod x डालेंगे तो लेफ्ट साइड में जैसा दिख रहा है उसे मिटा दो. लेफ्ट साइड में ग्राफ तो है ही नहीं, अगर है नहीं तो मिटाने का जरूरत नहीं है, बट राइट साइड में जो ग्राफ दिख रहा है
जस्ट उसी को ड्रॉ कर दो। देखो इस तरह से ड्रॉ करेंगे, बस ऐसे ड्रॉ कर दिया। अब इसको भी, ये सेकंड वाला को भी इसी तरह से हम ड्रॉ कर देंगे बस। तो मॉडल जब यूज करेंगे तो राइट हैंड साइड का ग्राफ को कुछ नहीं करेंगे, मतलब वाई एक्सिस का जो राइट साइड में जो ग्राफ है, वाई एक्सिस के जो राइट साइड में जो है उसे कुछ भी नहीं करेंगे, लेकिन लेफ्ट साइड में जो है उसे चेंज कर देंगे। क्या करेंगे, लेफ्ट साइड को जो है मिटा देंगे और राइट साइड ग्राफ को फिर से वहां पे प्लांट कर लेंगे। सो दिस इज ग्राफ नंबर 7। सो नाउ कम टू ग्राफ नंबर 8। ग्राफ नंबर 8, इन ग्राफ नंबर 8 y इक्वल टू लॉग मॉड x में फिर मॉड x, फिर मॉड डाल दिया जाए। तो इसके लिए हमें और एक ट्रांसलेशन का नॉलेज होना जरूरी है कि एफ ऑफ एक्स, अगर एफ ऑफ एक्स में एफ ऑफ एक्स का पूरा मॉड ही डाल देंगे, पूरा फंक्शन में ही मॉड डाल देंगे, पूरा पूरा फंक्शन में ही मॉड हम लोग यूज कर लेंगे, तो ग्राफ किस तरह से बनेगा, जो ग्राफ नीचे तरफ होता है उसे हम लोग मिटा देंगे। मिटा देंगे मतलब उसी को ऊपर शिफ्ट कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल सपोज मान लिया कि ई टू एक्स का ग्राफ, अच्छा ई टू एक्स का नहीं, ऐसा ग्राफ करेंगे जो नीचे तरफ होगा, जैसे एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स का, एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, और मैं चाहता हूँ इसके बाद मैं ड्रॉ करूँ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड साइन एक्स का ग्राफ। तो वो कैसे ड्रॉ होगा, पहले तो साइन एक्स का ग्राफ देखो, ये साइन एक्स का ग्राफ है। तो इस साइन एक्स का ग्राफ जो है, इसका जो नीचे तरफ में है उसे पूरा ऊपर शिफ्ट कर दो। ऊपर शिफ्ट कर दो मतलब ये ऐसे नीचे तरफ दिख रहा है तो इसे ऐसे कर दो, फिर इसको ऐसे ड्रॉ कर दो और नीचे तरफ वाला मिटा दो। बस दिस इज मॉड साइन एक्स ग्राफ। ओके, नाउ सो यू अंडरस्टूड। अब देखेंगे और एक ग्राफ के बारे में भी, y इक्वल टू लॉग एक्स बेस ए का मॉड, ये भी एक इंपॉर्टेंट ग्राफ है। सो ये ग्राफ को कैसे ड्रॉ करेंगे, y इक्वल टू लॉग एक्स बेस ए होल मॉड्यूलस। अब पहले तो log x का ग्राफ ड्रॉ कर दो। log x का ग्राफ इस तरह से ड्रॉ होगा फॉर a ग्रेटर देन 1 के लिए, और फॉर a का वैल्यू 0 से 1 के लिए ग्राफ किस तरह से ड्रॉ होता है, ये होगा ड्रॉ। अच्छा मॉड एक्स अगर डालेंगे तो नीचे में जो दिख रहा है ना उसे मिटा दो। मिटा दो मतलब उसे ऊपर तरफ ड्रॉ कर दो, उसे ऊपर तरफ ऐसे ड्रॉ कर दो, जैसे नीचे तरफ ये अप्रोच कर रहा है, वाई एक्सिस को ऊपर तरफ अप्रोच करेगा, वाई एक्सिस को ऊपर साइड में। अब ये जो ग्राफ है 0 लेस देन है लेस देन 1, तो मॉड ऑफ लॉग एक्स के लिए ये ग्राफ को क्या करेंगे, नीचे तरफ जो है उसको मिटा दो और वही वाला चीज को ऊपर तरफ प्लांट कर दो। अब देख सकते हो कि ये दोनों ग्राफ सेम जैसे ही सेम ही है, पूरा सेम ही हो रहा है। सो लॉग एक्स बेस ए का ग्राफ होल मॉड्यूलस में दोनों ए ग्रेटर देन 1 और 0 लेस देन ए लेस देन 1 के लिए दोनों के लिए सेम ही है। चलो ठीक है, अब हम लोग ड्रॉ करेंगे ग्राफ ऑफ लॉग मॉड एक्स बेस ए। तो पहले बेसिक ग्राफ ड्रॉ करो, बेसिक ग्राफ, जो बेसिक ग्राफ है लॉग एक्स का वो ड्रॉ करेंगे और उसी को ट्रांसफॉर्मेशन कर लेंगे। तो लॉग एक्स का जो ग्राफ है वो तो ऐसे होगा फॉर ए ग्रेटर देन 1, और फॉर 0 लेस देन ए लेस देन 1 के लिए ग्राफ कैसे बनेगा, उसके लिए तो ग्राफ ऊपर से इनफाइनाइट तरफ अप्रोच करते हुए नीचे तरफ आएगा, ठीक, फिर ये प्लस इनफाइनाइट पे अप्रोच कर लेगा, ओरिजिन है, और ये तो है एक्स एक्सिस, और ऊपर से y और नीचे y डैश, और ये वाला पॉइंट तो 10 और ये वाला पॉइंट भी 10 है। तो ये दो ग्राफ है किसका, y इक्वल टू लॉग एक्स बेस ए का ग्राफ, ये भी है y इक्वल टू लॉग एक्स बेस ए का ग्राफ। चलो फिर इसको ट्रांसफॉर्म करते हैं। ओके, इसको कैसे ट्रांसफॉर्म करेंगे, पहले तो मॉड एक्स करते हैं, लॉग एक्स में पहले मॉड एक्स करते हैं, मतलब इसी ग्राफ को ही y इक्वल टू लॉग एक्स बेस ए, और
1 सेकेंड। ओके चलो ठीक है, इसी में ही कर लेते हैं। लॉग मॉड एक्स का ग्राफ पहले ड्रॉ करेंगे। मॉड एक्स का ग्राफ मतलब लेफ्ट साइड में जैसा है उसी को हटा दो, राइट में जो दिख रहा है लेफ्ट में, राइट में जो दिख रहा है उसी को लेफ्ट में प्लांट करो, लेकिन लेफ्ट में कुछ रखना मत। लेफ्ट साइड का ग्राफ को मिटा दिया, और तो इस तरह से ग्राफ हम लोग का बन गया। ये तो बना ही थे हम लोग, बस ये लॉग मॉड एक्स का ग्राफ ड्रॉ हो गया। दोनों में y इक्वल टू, अब ये वाला चीज ड्रॉ कर ले हम लोग, लॉग एक्स, लॉग मॉड एक्स बेसिक। अब हम क्या करेंगे, इसमें हमें तो होल मॉड डालना है अभी। तो होल मॉड का क्या फॉर्मूला होता है, फंक्शन मॉड जाता है नीचे में जो ग्राफ दिख रहा है, मतलब ये ग्राफ का जो नीचे में जो ग्राफ है, एक्स एक्सिस का नीचे में जो ग्राफ है, जो ग्राफ एक्स एक्सिस के बिलो एक्स एक्सिस ग्राफ, we just remove or shift those graphs to upward mean offside of the x-axis. So x-axis के ऊपर साइड में उसे शिफ्ट कर लेंगे, इस तरह देखो, इस तरह शिफ्ट कर लेंगे। ठीक, अब इस तरफ में भी वही करेंगे। ये जो नीचे का जो ग्राफ है उसे मिटा दिया पूरा ऐसे, और फिर तो फाइनल ग्राफ कैसे दिखा, फाइनल ग्राफ कैसे दिखेगा, एक्स एक्सिस के नीचे में जो भी कुछ है उसे पूरा का पूरा मिटा दो, और पूरा ग्राफ ऊपर तरफ रहेगा। इस तरफ में भी उसे करेंगे, ये वाला जो नीचे में ग्राफ दिख रहा है इसको पूरा ऊपर तरफ ड्रॉ कर लेंगे। इसे भी, इसको पूरा शिफ्ट कर दो ऊपर में, पूरा मिरर इमेज कर दो। हाँ, ठीक है। तो अब नीचे तरफ जो है इसे मिटा दो ऐसे। अब जो फाइनल ग्राफ है वो किस तरह दिखेगा, जब ये ग्राफ सॉल्व कर रहे हो आप लोग, तो एक काम करना कि मैंने एक ही ग्राफ में जो सारा चीज बना रहा हूँ, आप लोग इसको स्टेप स्टेप करके करना। जैसे y को log x बेस ए का ग्राफ ड्रॉ किया, फिर y को log मॉड x बेस ए का ग्राफ ड्रॉ किया, फिर मैंने क्या ड्रॉ किया, y इक्वल टू, फिर मैंने ड्रॉ किया y इक्वल टू मॉड ऑफ log x बेस ए। ये है फाइनल ग्राफ। क्या है फाइनल ग्राफ, y इक्वल टू मॉड ऑफ लॉग मॉड एक्स बेस ए फिर मॉड, तो ये इसका फाइनल ग्राफ। ओके, सो ग्राफ नंबर 8 completed. Now come to graph number 9. Okay, graph number 9. In graph number 9 you can see, अब y में भी मॉड लगा है। अच्छा, ये मॉड x का जो सिस्टम है फिर से बता देते हैं। अगर f ऑफ x इक्वल टू y इक्वल टू f ऑफ x है, और अगर x के जगह पे कभी मॉड x डाला गया, तो y एक्सिस के लेफ्ट साइड में जो ग्राफ है उसे मिटा दो, और राइट साइड में ग्राफ जैसे दिख रहा है लेफ्ट साइड में उसे ड्रॉ कर दो। अच्छा, अगर कभी ये हो, फिर अगर कभी y के जगह पर मॉड y अगर यूज हुआ तो ग्राफ कैसे बनेगा, अगर y के जगह पर मॉड y यूज हुआ तो ग्राफ क्या होगा, ऊपर तरफ ग्राफ जैसा बना है, फॉर एग्जाम्पल y इक्वल टू ई टू द पावर एक्स, y इक्वल टू एक्स का ग्राफ ऐसे बनेगा। तो ग्राफ जो है नीचे तरफ का मिटा दो, मतलब मॉड वाई में क्या करेंगे, एक्स एक्सिस के इमेज से चेक करेंगे, एक्स एक्सिस के हिसाब से नीचे तरफ में जो ग्राफ है उसे मिटा दो। अब यहाँ पे तो ग्राफ है ही नहीं, मिटाना क्या, और ऊपर तरफ में जो ग्राफ है उसे नीचे तरफ ड्रॉ कर दो, बस यही है। y इक्वल टू मॉड y इक्वल टू ई टू द पावर एक्स का ग्राफ। अब मॉड y इक्वल टू एक्स का ग्राफ ऐसे कैसे बना, ये तो रूल हुआ, और y कभी प्लस बनेगा कभी माइनस बनेगा, प्लस वाला ऊपर है माइनस वाला नीचे है। y इक्वल टू ई टू द एक्स का ग्राफ ऊपर तरफ है, माइनस वाई, y इक्वल टू ई टू द एक्स का ग्राफ ये ऊपर वाला है, और नीचे में जो ग्राफ बना है वो तो y माइनस वाई इक्वल टू ई टू द एक्स, और y इक्वल टू माइनस ई टू द एक्स बोल सकते हैं इसे हम। तो इसका मतलब, तो जब y में मॉडल लगेगा
तो एक्स एक्सिस का नीचे वाला पोर्शन को मिटा दूं और ऊपर तरफ जैसा ग्राफ बना है वैसा ग्राफ नीचे ड्रॉ कर दूं। अब हम लोगों ने इसका तो ग्राफ ड्रॉ कर ही लिया था, y इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ लॉग मॉड एक्स बेस ए का ग्राफ। दोनों ही केस के लिए हम लोगों ने निकाल दिया था, दोनों ही केस के लिए निकाला है, ए ग्रेटर देन 1 के लिए भी और ए 0 लेस देन ए लेस देन 1 के लिए भी। कैसे ग्राफ हम लोगों ने ड्रॉ किया था, इसे ड्रॉ कर देते हैं। y में मोड अभी डाल नहीं रहा हूँ, अभी जो प्रीवियस वाला ग्राफ हम लोग ड्रॉ किए हैं बस उसी ग्राफ को जस्ट ड्रॉ कर रहे हैं। तो प्रीवियस ग्राफ में हम लोगों ने देखा था ये y एक्सिस एंड फॉर x एक्सिस दिस इज x एक्सिस। सेकेंड ग्राफ के लिए भी इसी तरह से। ओके, तो यहाँ के लिए ग्राफ कैसे बना था, 1 0 पर इस तरह बना था और ये, फिर यहाँ पे भी 1 0 पर इस तरह ग्राफ बना था और ये। बस ये वाला ग्राफ बना और इसके लिए भी इसी तरह से 1 0 -1 0, ये था 1 0 पर ग्राफ और ये -1 0 और ये x x डैश y y डैश, दिस इज द ओरिजिन। और ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ जो अभी ड्रॉ किया गया है, दिस इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू लॉग मॉड एक्स बेस से होल मॉड्यूलस का ग्राफ। इस तरफ में भी उसे ही ड्रॉ किया गया था ऐसे, और इस तरफ से किया गया था और ये भी इस तरह से और इस तरह से ऐसे। This is a graph. This is y. This is y dash. This is x. This side is x dash. Origin. और ये तो है 1 0 और ये है -1 0। अब हम लोग यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या करने वाले हैं, तो y के जगह पर अगर हम लोग मॉड y ट्रांसफॉर्म करेंगे देन व्हाट विल हैपन। रूल इज दैट y के जगह पर अगर मॉड y कभी ग्राफ में डाला जाता है तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या डिस्कशन किया, हम लोग ये डिस्कशन किए कि नीचे तरफ का जो ग्राफ है उसे मिटा देंगे और ऊपर का ग्राफ को नीचे प्लॉट कर देंगे। अब ये दोनों में ही दिख रहा है कि नीचे तरफ कोई ग्राफ ही नहीं है, ये टोटल मॉड्यूलस है, उसमें इस तरफ ग्राफ ही नहीं दिख रहा है। अब हम इसे क्या करना चाहते हैं, हम ये ड्रॉ करना चाहते हैं कि y मॉड्यूलस इक्वल टू लॉग एक्स बेस ए, इधर भी मॉड इधर भी मॉड, सब तरफ मॉड है, ठीक है। और ये भी वही ग्राफ ही है, y मॉड्यूलस इक्वल टू लॉग मॉड एक्स बेस ए होल मॉड। अब ये वाला ग्राफ हम ड्रॉ करना चाहते हैं, नीचे तरफ का x का नीचे तरफ पर मिटा देंगे, वो तो पहले मिटा हुआ है। ऊपर तरफ जैसा है नीचे तरफ पूरा ऐसे ड्रॉ कर देंगे, ऊपर तरफ जैसा है पूरा ऐसे ड्रॉ कर दो। अब इसको रेड पेन से ड्रॉ कर, ये वाला कहाँ से आया, ये रेड वाला, ये जो इसका जो ये वाला जो है इसका, ये जो एक्स एक्सिस का तरफ में दो ग्राफ है, नंबर 1 और नंबर 2। नंबर 1 ग्राफ का इमेज नीचे में ड्रॉ किया गया है। नंबर 1 का इमेज को और थोड़ा सा अच्छे तरीके से ड्रॉ कर लेते हैं। ये इमेज जैसे दिखेगा पूरा नंबर 2 ग्राफ से ऐसे लगेगा जैसे एक ही साथ है दोनों। तो इस तरह से इमेज हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं। अब इसका जो नंबर 2 जो है, 2 नंबर जो दिया उसको भी हम लोग ड्रॉ करेंगे। मीन्स ये ग्राफ किस तरह से नजर आएगा, ये ग्राफ तो ऐसे दिखेगा, ये ग्राफ, ये जो येलो वाला आ रहा है
अब ये और ये रेड पूरा पूरा एक जैसे दिखेगा, और ये जो रेड है ये पूरा इसके साथ मर्ज हो जाएगा। बस, मतलब ये ऊपर में जो 1 और 2 है उसका जो इमेज हम लोगों ने नीचे ड्रॉ किया, वो मॉड वाई के लिए, मॉड वाई के लिए ऊपर में जो है डिट्टो वही चीज नीचे हम लोग ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पे भी इसी तरह से ड्रॉ कर लेंगे, ऐसा। और ऐसे नहीं, थोड़ा सा इसको मार्च करते जाएंगे, ये वाला। इससे कैसे ड्रॉ होगा, थोड़ा सा इस तरह से चलेंगे। और ये वाला जो है, ये 3 और ये 4, 3 का जो नीचे में ये 3 डैश है, और ये जो 1 का नीचे में ये सोच लो ये 1 डैश है, 2 का नीचे में 2 डैश है। सो इस तरह से ग्राफ इसका ड्रॉ हो गया। चलो ठीक, तो ये हो जाएगा 3 का नीचे 3 डैश, इधर इमेज बना, ये 4 का जो है नीचे में 4 डैश बना। अब इस तरह से ये वाला ग्राफ कंप्लीट हो गया, इस तरफ भी वैसे ही ग्राफ हम लोग ड्रॉ कर लेंगे। बस यहाँ पे सोच लो, मान लो 5, 6, 7, 8, 5 का 5 डैश, 6 का 6 डैश, एंड 7 का इमेज नीचे, और 8 का नहीं। तो इस तरह से हम लोग इसको कंप्लीट किए, ये अपना क्वेश्चन है, ये नहीं है, ये हम लोग पहले ड्रॉ किए। बस आप लोगों को ये जरूरत है कि कॉपी में कर लो सॉल्व, इसे एक एक स्टेप करते जाओ। सो नाउ ग्राफ नंबर 10, 10th ग्राफ। नाउ 10th नंबर ग्राफ में क्या है, देखो y इक्वल टू log greatest integer of x base a for a greater than 1 and x greater than equal to 1, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो x का वैल्यू अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है और ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू है, तो जब x का वैल्यू रहेगा 1 से, जब x का वैल्यू आएगा 1 से 2 के बीच में, when x value is in between 1, 2, 1 included, 2 not included, then y का वैल्यू इस जगह पे क्या आना चाहिए, y इक्वल टू लॉग बेस ए, ये जो x है वो तो आ जाएगा 1, हमेशा से 1 आएगा, 1 से 2 के बीच में हमेशा 1 आएगा। 1 लो, 1.1, 1.2, 1.3, कुछ भी लो ग्रेटेस्ट इंटीजर की जगह पर। ये तो हमें पता ही है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x इक्वल टू 1 if x is in between 1 से 2, 1 included but 2 not included, so ये log 1 आएगा, that is 0। फिर इस तरह से x का वैल्यू अगर 2 से 3 के बीच में रहेगा, तो what will be y equal to log base a 2, that is log 2 base a। अब यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर सिंबल हम लोग क्यों लिख रहे हैं, ये तो डायरेक्ट है, हम लोग लिखेंगे 1। ग्रेटेस्ट इंटीजर तो 1 से 2 है, 1 से 2 के बीच में कोई भी वैल्यू हो सकता है, 1.1, 1.2, तो इसे हम लोग लिखेंगे log 1, और इसे भी हम लोग लिखेंगे log 2। बस हो गया। और इसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर की जगह पर हम लोग 2 से 3 के बीच में 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 कुछ भी पुट करो, वो तो 2 ही रहेगा। बस इस तरह से log 3 आएगा, x का वैल्यू अगर 3 से 4 के बीच में रहेगा तो y इक्वल टू लॉग बेस से 3। ओके, इस तरह से हम लोग इसे देखेंगे। फिर इसका ग्राफ किस तरह ड्रॉ करेंगे नाउ, दिस इज y एक्सिस, this is x axis, x dash, y, and this is y dash। और ये जो log x बेस ए का ग्राफ और a ग्रेटर देन 1 किस तरह से होता है, log x का ग्राफ तो ऐसे होना चाहिए, ऐसे होकर नीचे तरफ जाएगा, लेकिन
यहाँ पे x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 दिया, इसके बारे में हम डिस्कशन कर चुके हैं। तो नीचे तरफ तो ग्राफ नहीं रहेगा, नीचे तरफ ग्राफ नहीं रहेगा, सिर्फ ऊपर तरफ ग्राफ रहेगा। तो इस तरह से होते हुए जाएगा ये। एंड a ग्रेटर देन 1 के लिए इस तरह से ग्राफ है, नीचे तरफ ऐसा रहता है, बट यहाँ पे नहीं रहेगा क्योंकि x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, 1 भी इंक्लूडेड है। तो इसको थोड़ा रेड पेन से बनाते हैं, रेड 1 इंक्लूडेड है। अब हमें लेकिन चाहिए ग्राफ किसका, लॉग ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स बेस ए का ग्राफ चाहिए, जो कि 1 से 2 के बीच में। अब ये वैल्यू तो 1 0 है, ये तो क्लियरली पता है आप लोगों को, 1 0, दिस इज 2 0, 3 0, 4 0, 5 0। सो 1 से 2 के बीच में अगर जब x का वैल्यू रहेगा तो आंसर विल बी व्हाट, 0। ये सब आंसर 0 रहेगा। 2 के बीच में रहेगा मतलब 2 नहीं रहेगा। ओके, ये है 2, दिस इज 2, 2, दिस इज 3, दिस इज 4। चलो 2 से 3 के बीच में जब ग्राफ रहेगा तो लॉग बेस, तो ये वाला तो ग्राफ हो गया, ये जो रेड पेन में रेड में जो ड्रॉ किया है वही ग्राफ है। अच्छा, जब 2 से 3 के बीच में रहेगा तो लॉग 2 रहेगा। ठीक है, लॉग 2 का वैल्यू 0.3010, थोड़ा सा जस्ट से ज्यादा होगा। 3 में नहीं, 3 तो इंक्लूडेड ही नहीं है, यहाँ पे 3 इंक्लूडेड नहीं है, 3 इंक्लूडेड नहीं है। सो लॉग 2 बेस है, log 2 base means this value is log 2 base a। ठीक है, this value is log 2 base a। यहाँ पे इस तरह से हम लोग लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। अब 3 से 4 के बीच में log 3 बेस है, log 3 का जो वैल्यू है वो तो log 2 से ज्यादा होगा थोड़ा सा, तो ये रहेगा log 4 तक चलेगा, लेकिन 4 नहीं होगा। ठीक है, 4 में ओपन इंटरवल रहेगा। सो दिस इज द ग्राफ 10 completed। Graph number 11, y equal to log x minus 2. Suppose base is 3 and here log x plus 3, suppose base is 1 by 2. Then how to draw this graph? So guys, you know, f of x, y equal to f of x is there. Suppose we change x to x minus a. सपोज x को हम लोग चेंज कर देंगे, x माइनस ए से ट्रांसफॉर्म कर लेंगे, तो इस तरह से ग्राफ क्या होगा, ग्राफ जैसा जो भी है वो मॉड शिफ्ट हो जाएगा टुवर्ड्स राइट, मॉड शिफ्ट टुवर्ड्स राइट। अगर x के जगह पर हम लोग x प्लस ए शिफ्ट करते हैं तो मॉड शिफ्ट हो जाएगा टुवर्ड्स लेफ्ट, मॉड ए शिफ्ट टुवर्ड्स लेफ्ट। पूरा का पूरा ग्राफ लेफ्ट में या पूरा का पूरा ग्राफ राइट में शिफ्ट हो जाएगा। दिस इज द ट्रांसफॉर्मेशन रूल। सो log x minus 2 base 3। So first we should know the graph of y equal to log x base 3। So log x base 3 is the basic graph। इसका कैसे बनेगा उसको फर्स्ट ड्रॉ करेंगे, फिर हम इस ट्रांसफॉर्म कर लेंगे। सो log x base 3, log x base 3 का ग्राफ तो इस तरह से बनेगा। अब log x बेस 3 का ग्राफ जो है, अब x के जगह पे हम क्या चेंज करेंगे, x माइनस 2। अगर x माइनस 2 चेंज कर लेंगे तो x जो x माइनस पॉट 2, सो यह माइनस 2 का जो मॉड्यूलस है वो राइट में शिफ्ट कर जाएगा। ओके, तो ये ग्राफ जो है ये क्या है, 1 0। अच्छा, दिस पॉइंट जो x एक्सिस में इंटरसेक्ट कर रहा है वो हो रहा है 1 0, y दिस इज y there and this is the origin and what is the asymptote to the graph। ये जो ग्राफ है log x बेस 3, उसका एसिम्पटोट क्या है, एसिम्पटोट इज y एक्सिस, मतलब x इक्वल टू 0। अब ये y एक्सिस को अप्रोच करता है कहाँ पे, इनफाइनाइट पे टच करेगा, माइनस इनफाइनाइट पे टच करेगा, सो y एक्सिस इज द एसिम्पटोट और टेंजेंट टू द ग्राफ एट इंफिनिटी। चलो जो भी है, तो ये ग्राफ को मॉड 2 हम लोग शिफ्ट कर लेंगे टुवर्ड्स राइट। सो टुवर्ड्स राइट मींस ये 1 है, दिस इज 2, दिस इज 3। तो 3 0 में ये ग्राफ पूरा डिटो जो ग्राफ है पूरा ये शिफ्ट हो जाएगा 3 0, 3 0 में शिफ्ट हो गया। और ये जो है अब ये जो ग्राफ है ये अप्रोच अब करने लगेगा किसे, x इक्वल टू 2 को।
x इक्वल टू 2 को, ओके, ये जो x इक्वल टू 2, दिस स्ट्रेट लाइन इज x इक्वल टू 2. नाउ दिस ग्राफ अप्रोचिंग टू x इक्वल टू 2. सो पूरा का पूरा ग्राफ हम लोग राइट साइड में, अगर x माइनस 2 की जगह x प्लस 2 होता तो पूरा का पूरा ग्राफ टू लेफ्ट में शिफ्ट कर जाएंगे. सो नाउ फॉर दिस ग्राफ y इक्वल टू, इसका पहले ग्राफ ड्रॉ करते हैं, इसका जो बेसिक ग्राफ है, एंड बेस इज 0 to 1. बेस का जो वैल्यू है दैट इज इन 0 to 1. सो ग्राफ तो इस तरह से आएगा. ये वाला ग्राफ किसका है? दिस ग्राफ इज y इक्वल टू log x mod 1/2. अच्छा, यहाँ पे जो ग्राफ नया वाला ग्राफ बना वो क्या है? y इक्वल टू log mod x माइनस, सॉरी नॉट mod, जस्ट x माइनस टू बेस 3. अब ये जो बेस में यहाँ पे 1/2 है तो ग्राफ इस तरह से बना, और ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट टू द x एक्सिस इज व्हाट? 1,0. 1,0. Now what we want to do? We want to shift the graph mod 3 towards left. तो ये तो 1 है, ये हो गया 0, फिर ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा -2. 0 -1 -2, फिर ये हो जाएगा -3. देखो ये ग्राफ कहाँ पे है? ये 1 0 में है. अब फर्स्ट 1 2 3, अब इसमें यहाँ पे शिफ्ट करेंगे ग्राफ. mod 3 टुवर्ड्स लेफ्ट शिफ्ट कर जाएगा. mod 3 means mod 3 was 3 distance. So 1 2 3, 3 distance मतलब यहाँ पे शिफ्ट करना चाहिए. अगर ग्राफ यहाँ पे शिफ्ट करेगा तो ऐसा लाइन थोड़ी ड्रॉ होगा, कर्व ड्रॉ होगा. ग्राफ का जो कर्व है, जैसा ग्राफ है पूरा वैसे ही बन जाएगा. ग्राफ जैसे दिख रहा है पूरा डिटो ग्राफ पैरेलल ऐसे ड्रॉ हो जाएगा. और ये जो यहाँ पे जो लाइन दिख रहा है, ये लाइन को ये अप्रोच करेगा, जैसे y एक्सिस को अप्रोच कर रहा था, ये अप्रोच करेगा ओके, ये अप्रोच करेगा किसे? अब ये ग्राफ इसे अप्रोच करेगा. दिस लाइन इज व्हाट? -1 -2 -3, शिफ्ट कर गया 1 2 3. ग्राफ का भी काउंटिंग पॉइंट 3 हो जाएगा. यहाँ पे कट करेगा ग्राफ -3,0 -2,0 -2,0 में कट करेगा. और ये जो है x इक्वल टू -3, x इक्वल टू -3 जो लाइन जिससे ये ग्राफ अप्रोच करेगा, इस और इसे हम लोग एसिम्पटोट भी कहेंगे. दिस इज एसिम्पटोट. एसिम्पटोट क्या होता है? द स्ट्रेट लाइन to which the curve approaches at infinity. So this is the graph of y equal to log x plus 3 base 1/2. Now graph 12, y equal to log 3x base 2. log x का ग्राफ जैसे भी होगा, log x का ग्राफ जैसे भी होगा, यह है log x का ग्राफ. अब x के जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे? 3x. 3x ट्रांसफॉर्म करेंगे, x के जगह पे 3x वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो ये log x बेस 2 का ग्राफ. ओके, log x बेस 2 का ग्राफ है. अब 3x अगर लिखेंगे तो इसका रूल क्या है? अगर कभी fx मतलब y इक्वल fx, x के जगह पर हम लोग kx सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो जो x का जो स्केल है x एक्सिस में, तो सारा स्केल ग्राफ तो जैसा है वैसे ही ड्रॉ करेंगे, लेकिन स्केल में बाय 1/k डिवाइड कर देंगे. तो क्या डिवाइड कर दो?
तो ये वाला पॉइंट क्या है 1,0 था, 1,0 था, बट अब जो log 3x बेस 2 का ग्राफ ड्रॉ करेंगे उसके लिए ग्राफ तो पूरा डिटो वही है, ग्राफ पूरा वही है, लेकिन द स्केल इज डिवाइडेड बाई 3। अब यही वाला 1/3। सो अब स्केल जो है अब हो गया 1/3, जहां जहां भी जैसे भी स्केल है पूरा टोटल 1/3 जीरो हो जाएगा। ग्राफ यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। सो जहां जहां ये जीरो है, जीरो तो हो जाएगा 0/3, दैट इज जीरो, वो तो ओरिजिन अभी भी रहेगा। सो ग्राफ इज लाइक दिस। एंड सेकेंड वाला ग्राफ के लिए देख सकते हैं, फॉर द सेकेंड ग्राफ कैसे ड्रॉ होगा। तो ये तो पूरा इस तरह से चलेगा ग्राफ, क्योंकि बेस में 1/2 है, लेकिन x/2 बोल रहा है, x/2 मतलब x का जो कोफिशिएंट है 1/2, वो पूरा ग्राफ का जो स्केल में डिवाइड हो जाएगा। ये वाला पॉइंट क्या होना चाहिए, ये वाला पॉइंट होना चाहिए 10। बट अब जो नया ग्राफ बनेगा उसके लिए क्या पॉइंट बनेगा, यही 10 को हम शिफ्ट करके क्या लिखेंगे, पूरा उसमें 1/2 को डिवाइड कर देंगे, मीन्स 2,0। दिस पॉइंट विल बी 2,0। यहाँ होगा 2,0, ये तो 0 0 ही रहेगा। सो ये पॉइंट रहेगा 2,0। ग्राफ तो ऐसे ही रहेगा, लेकिन जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है 10 वो हो जाएगा 20, क्योंकि एक्स एक्सिस में हम लोगों ने क्या किया, जो भी एक्स कोफिशिएंट है उसको कोऑर्डिनेट में उल्टा डिवाइड कर दिया। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग माय वीडियो। बाय बाय।